reproductive system. We said that how the female reproductive system and its organs that are included in it will be having a proper growth, proper functioning, and which hormones were responsible for the proper functioning of the female reproductive system. Yes, they are the female reproductive hormones which are estrogen and progesterone. But the role of gonadotropin releasing hormone, LH and FSH is major one which will control the activity of the ovaries as well as the uterus and the whole process of fertilization in every event that is associated with the female reproductive system. Now we are going to talk about the next thing, that is the process of gametogenesis. Reproductive system study करने के बाद हमारे लिए gametogenesis process समझना बहुत important है, because this is the process for formation of the gametes. As we have discussed before, we very well know that gamete formation को क्या कहा जाता है? Gametogenesis. हमें ये भी पता है कि ह्यूमंस में मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं. मेल गैमेट जो होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम ओवा कहते हैं. तो ये जो स्पर्म्स हैं उनके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो वी आर गोइंग टू क्विकली रिकॉल that what happens during spermatogenesis. तो क्या होता है उसको जानने से पहले spermatogenesis कहाँ पे होता है ये भी समझना important है. तो spermatogenesis जो है it takes place in the seminiferous tubules. It takes place in the seminiferous tubules of the testis. तो जो testis था उसके स्ट्रक्चर में जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसमें होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं दे आर लाइंड अप बाय द जर्म सेल्स, जिसे कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम. तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स are the one which will give rise to the sperms. पर क्या यहाँ पे सिर्फ germ cells होते हैं? नहीं. Along with germ cells, there is also presence of a longer cells which are known as Sertoli cells, and they will be nourishing the sperm, that is growing sperms will be developed, will be nourished by the Sertoli cells. So here it begins in the seminiferous tubules of the testis. So the very first cells that were present are called germinal epithelial cells. अब जब ये germinal epithelial cells जो हैं, they will be undergoing the process of mitosis. और mitosis जब करते हैं, तो they will give rise to large number of cells. मान लो सेल A और सेल B, पर इन सेल्स को कहा क्या जाता है? Spermatogonia. It will giving rise to many cells. It will be giving rise to many cells by the process of mitosis, and all these cells which have formed, these cells are known as spermatogonia. अब ये जो spermatogonia होता है वो दो तरह के होते हैं, मतलब A type spermatogonia and B type spermatogonia. इनमें से A टाइप जो है वो अभी भी डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज नहीं कर रहे, इसीलिए दे हैव स्टिल एन एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग, राइट. तो A टाइप जो है हम कह सकते हैं इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया. तो ये डिवाइड होगा और स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, फिर डिवाइड होगा और बनेंगे, ऐसा कंटिन्यू रहेगा एट प्यूबर्टी. जबकि B टाइप के स्पर्मेटोगोनिया जो है they are going to enlarge in its size, right, and these enlarged cells will be now known as primary spermatocyte. What will be called? Primary spermatocyte. तो अभी तक हमने क्या देखा? germ cells थे, germ cells के पास डिवीजन की एबिलिटी होती है, तो germ cells डिवाइड होते जाते हैं. जैसे जैसे वो डिवाइड होते हैं
उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। जो दो तरह के होते हैं, कई स्पर्मेटोगोनिया अभी भी अपने डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर रहे, इसलिए अभी भी ये क्या करते रहते हैं, डिवाइड करके और नए स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। जबकि कई स्पर्मेटोगोनिया ऐसे होंगे जो साइज में एनलार्ज हो जाएंगे, एंड दीज एनलार्ज स्पर्मेटोगोनिया विल बी नोन एज द प्राइमरी spermatocyte. They will be known as primary spermatocyte. Now this primary spermatocyte is going to undergo the next process which is called meiosis 1. What it will undergo? Meiosis 1. और meiosis 1 करने पर जो दो नए सेल्स बनेंगे, इन दोनों सेल्स को क्या कहा जाएगा, secondary spermatocyte. They will be known as secondary spermatocyte, and these secondary spermatocyte will undergo meiotic division to produce 4 cells which are known as spermatids, which will be known as spermatids. तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल में माइटोसिस होता है तो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में से एक स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज हो जाता है तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 1 करेगा तो बनेंगे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड एज वी नो मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड्स फॉर 2 टाइप्स एंड जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट्स ओनली 1। ओके, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होने पर जो 4 सेल्स बने इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें तो अभी तक क्या बना, स्पर्मेटिड बने। अभी आगे स्पर्म मतलब स्पर्मेटोजोआ जो है वो बना नहीं है, मतलब स्पर्मेटिड्स विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन it will be known as a sperm or spermatozoa, right? तो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होते हैं आधे, और वहां से अपना नरिशमेंट लेते हैं, एंड अबाउट 60-65 डेज के बाद a spermatid gets converted into spermatozoa। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, और डिफरेंशिएशन में ऐसे कई सारे इवेंट्स होंगे। मतलब क्या होता है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसमें से एक्रोसोम बनता है, न्यूक्लियस जो स्फेरिकल होता है उसकी जगह पे ओवल और एनलार्ज बन जाता है, इनके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो एकदम से रिमूव हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ पे मिडिल पीस में अरेंज हो जाते हैं। ऐसे बहुत से चेंजेस होते हैं और इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। तो डिफरेंशिएशन होने के बाद a spermatid will change into spermatozoa, and the process will be known as spermiogenesis. The process will be known as spermiogenesis। तो ये पूरी प्रोसेस होगी। इनमें से हम कह सकते हैं कि ये जो फेज है जहाँ पे जर्म सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, तो इतने फेज को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही काम रहता है। ठीक है, फिर स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इस फेज को कहा जाता है ग्रोथ फेज, और ग्रोथ के बाद जो मियोसिस होता है उसे कहा जाता है मैच्योरेशन फेज। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और फिर आता है मैच्योरेशन फेज, और ये तीनों फेजेस खत्म होने के बाद जो डिफरेंशिएशन होगा स्पर्मेटिड का, दैट विल गिव राइज टू द स्पर्मेटोजोआ। तो हमने स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्कस किया था, तो लेट अस डिस्कस दैट रीजंस अगेन। ओके, सो हियर in the structure of sperm cell, right? तो यहाँ पे सबसे एंटीरियर में जो रीजन होता है, that region will be
सबसे एंटीरियर जो रीजन है उसे कहा जाता है एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम है वो एक्चुअली गोल्गी बॉडी मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फ्यूजन से बनता है और इसी एक्रोसोम जो है उनमें कई तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कहा जाता है स्पर्म लाइसेंस। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द लेयर्स ऑफ ज़ोना पेल्यूसिडा व्हेन द स्पर्म एंटर्स इनटू द एग। मतलब जब स्पर्म एग के बहुत ही नजदीक आ जाता है तो एग के सराउंडिंग तो लेयर्स होते हैं, कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पेल्यूसिडा, तो इन लेयर्स में एक पंक्चर करके अंदर जाना है। तो फॉर दैट the sperm license are being released from the acrosome which will help to break those layers and help the sperm to penetrate into the next, that is in the egg cell. Now this whole central part which you can see is the nucleus. तो पहले जो स्पर्मेटिड्स है उनका न्यूक्लियस राउंड होता है, जबकि ये जो न्यूक्लियस है वो फ्लैट और थोड़ा बहुत ओवल होता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि वाटर कंटेंट जो है साइटोप्लाज्म में वो रिमूव हो गया है और डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल ज्यादा होता है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो है बाहर के वो बहुत ही कम हो जाते हैं और बाकी न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट्स में सिर्फ और सिर्फ maximum amount of DNA will be fitted within this nucleus. Okay. Then the next region which you can see over here is the region of the neck part. मतलब इतने region को हम क्या कहते हैं? Head region कहते हैं। फिर आ जाता है neck region। तो ये जो neck region है उसमें एक centriole present होता है जिसे कहा जाता है proximal centriole। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब ये स्पर्म एग में पेनिट्रेट करता है तो एग के पास कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता, तो डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए सेंट्रियोल जरूरी होता है। तो ये जो न्यूक्लियस के बाद इमीडिएटली जो सेंट्रियोल आता है जिसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहा जाता है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है as soon as the fertilization occurs, right? fertilization होगा फिर क्या होगा? meiotic division 2, तभी तो बनेगा ओवम, राइट। तो वो जो डिवीजन है that is going to occur with the help of the proximal centriole, whereas another centriole will be forming a filament like structure and this is the axial filament। और एक्सियल फिलामेंट बनता किससे है? डिस्टल सेंट्रियोल। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल एंड दिस एक्सियल फिलामेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द होल टेल पार्ट। द माइटोकॉन्ड्रिया दैट were present are going to be aligned in a spiral ring like structure and these mitochondria, these are mitochondria and this whole part is known as middle piece. Mitochondria will be providing the energy for the sperms to move when they have entered into vagina. तो vagina से uterus जो sperms move होते हैं, they require energy. So their source of energy will be these mitochondria which will be continuously doing the work. And rest of the region which you can observe is the tail part and it contains all the cytoplasm of the spermatid. तो spermatid में जितना cytoplasm content है वो पूरा किसमें आ जाता है? tail part में। Here also there is at the end, this is known as the ring centriole. Ring centriole को annulus भी कहा जाता है। Ring centriole is also known as annulus. And the whole region, मतलब ये जो neck मतलब head के region से लेके this whole region will be bounded by one more membrane which is known as manchet. तो ऐसे करके जो ये sperm का structure है उनमें ये सारे regions आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे how does a